Yes. So for a salt of polyprotic acid or base, what are the anions that can come from H3PO4? I can have an anion H2PO4 minus, correct? Yes, sir. HPO4 2 minus. HPO4 2 minus PO4 3 minus. or PO4 3 minus. minus, correct? 3 minus. Yes, sir. Similarly, from FeOH whole thrice, what are the cations I can have? FeOH2 FeOH2 plus. plus OH2 FeO2 plus F2 FeOH2 plus. plus, yeah, Fe3 plus, correct? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ. अब सपोज मैं H3PO4 की बात करूं, H3PO4 कैसी स्पीशीज है? Is it a acid or is it a base? Acid. 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 Acid है. तो एसिड है तो उसका एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होगा कुछ. हाँ. क्या है H3PO4 का एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट? कैसे डिनोट करेंगे हम लोग उसको? Ka1. 1. And similarly I come to H2PO4 minus. Which type of species is H2PO4 minus? Is it a acid or a base? Acid. Acid. What is its Is it base? acidic dissociation constant? K2. K. K2. But it is also the conjugate base of H3PO4. Yes, sir. Yes. Yes, sir. It can act as a base also. Correct? Yes, sir. What Yes, sir. basic dissociation constant? KB1. KB1. Kw by K1. Upon K1. Correct? सही है? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Similarly, HPO4 2 minus acid K3. base भी है. सही है? लेकिन PO4 3 माइनस एसिड नहीं है. It can act only as base. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, अगर तुम FeOH होल थ्राइस का डिस्कशन करो, तो FeOH होल थ्राइस बेस है. बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb1. करेक्ट? FeOH होल ट्वाइस प्लस बेस है. बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb2. एसिड भी है Kw by Kb1 and similarly Kb3, Kw by Kb2, Kw by Kb3. ठीक है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. So what I wanted to explain by this, that from a polyprotic acid or basis, we can get two types of ions. What is the first type of ions we can get? The first type of ions we can get are amphoteric ions, which can act both as acid and base. Correct? Yes, sir. So these you can see, these or these are
amphoteric ions. Okay, which can act both as acid as well as base. क्लियर है ये? और दिस आयन, जो आखिरी आयन होता है जब सारे H प्लस या OH माइनस रिमूव हो गए हैं, जो लास्ट आयन होता है वो कैसा होता है? वो एम्फोटेरिक नहीं होता है। लास्ट आयन कैसा है? नॉन एम्फोटेरिक। मल्टीवेलेंट आयन। ओके, तो दो तरीके के आयन्स हम लोगों को मिल सकते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स और बेसिस से। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब पीएच कैलकुलेशन में आ जाते हैं। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। प्रीवियस सर वो फर्स्ट स्टेप वाले भी आयंस तो है ही ना, मतलब उनका भी कुछ तो ना। आयंस किधर? क्या पूछ रहे हो? सर वो जो फर्स्ट स्टेप वाले हैं वो भी है ना सर आयंस में? What do you mean by first step? नहीं सर, सॉरी सर, कुछ सॉरी सर, समझ रहा हूँ। तो चलो पीएच कैलकुलेशन में सबसे पहले लेते हैं salt having an amphoteric anion and cation from strong base. एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसे सॉल्ट का? एग्जाम्पल्स हो गए NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO4। करेक्ट? इन सब में salt is having a amphoteric anion and cation from strong base. Correct? Yes, sir. अब इसका पीएच कैसे कैलकुलेट होगा? तो सपोज लेट्स टेक HCO3 माइनस, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। तो अब सोडियम आयन की तो कोई हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, बाइकार्बोनेट आयन वाटर से रिएक्ट करेगा। एंड विच टाइप ऑफ स्पीशीज इज बाइकार्बोनेट आयन? इट इज एम्फोटेरिक। करेक्ट? तो ये वाटर में एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, करेगा, और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। करेक्ट? तो ये दो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा वो वाटर में।
ठीक है, पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2, दूसरे का Kw/Ka1, K2 is equal to H3O plus into CO3 2 minus upon HCO3 minus, and Kw/Ka1 is equal to H2CO3 into OH minus upon HCO3 minus. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes. Now, if we divide these two equations, what we will get? On dividing these two equations, the expression we get is Ka1 Ka2 by Kw is equal to H3O plus upon OH minus into CO3 2 minus upon H2CO3. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो Kw को राइट साइड में ले आए तो क्या मिल जाएगा? Ka1 Ka2 is equal to Kw by OH minus को we can write H3O plus, Yes, sir. तो यहाँ हमें मिल जाएगा H3O प्लस का स्क्वायर, और ये जो रेशियो होता है ना, दिस इज ऑलमोस्ट 1. So finally we can conclude H3O plus is equal to root of Ka1 into Ka2, or pH is equal to pKa1 plus pKa2 by 2. तो ये आ गया सॉल्ट कंटेनिंग एम्फोटेरिक एनायन का पीएच. नाउ यू कैन आस्क सर ये रेशियो 1 क्यों लिया? देखो ये कंसेप्ट याद रखो, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था. कंसेप्ट क्या है? बेसिकली व्हेन अ सॉल्यूशन हैज a weak acid and a weak base, which are not conjugate of each other, then molarities of products of their reaction with water are almost equal, but H plus concentration is not equal to OH minus. Okay,
इसका इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था, दैट वाज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। उसमें भी याद है ना, यू वर आस्किंग कि सर अल्फा सेम क्यों ले लिया। करेक्ट। तो वैसे ही देखो, इस सॉल्यूशन में एक वीक एसिड है HCO3 माइनस, एक वीक बेस है HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस खुद अपना कॉन्जुगेट नहीं है। करेक्ट। तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन में उनके वाटर के साथ रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या है, CO3 2 माइनस और H2CO3। करेक्ट। उनकी मोलैरिटी ऑलमोस्ट बराबर रहेगी। ओके, Yes, sir. Yes. ये नोट हो गया। सर K1 K2 is equal to H3O plus whole square कैसे आया? यार KW इधर आएगा तो KW बाय OH माइनस कितना होगा। ओके सर। सर हाँ, सर वो आप सेकेंड रिएक्शन बता सकते हो क्या एक बार? कौन सा सेकेंड रिएक्शन? सर वो जिसमें H2CO3 बन रहा है। इसकी तरह एक्ट कर रहा है भाई। अच्छा भाई वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है और डोनेट कर सकता है। अच्छा, तो आपने एक एसिड और एक बेस दोनों के लिए लिखा हुआ है। थैंक यू सर। So next page, please. सर प्रीवियस पेज दिखा। यस सर डन। नोट कर लिया इसको। Yes, sir. Sir, wait. अगला ले सकते हैं हम लोग, salt having non-amphoteric multivalent
anion and cation from strong base. ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? Na2CO3, Na3PO4, करेक्ट? तो सपोज Na2CO3 का एग्जाम्पल है, तो कार्बोनेट आयन की हाइड्रोलिसिस कैसे होगी? ये तो केवल बेस की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी Kw/Ka2। ठीक है ना? या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, और अगर ये वैलिड है तो डायरेक्टली अल्फा को लिख सकते हो √Kw/Ca2। तो OH माइनस कंसंट्रेशन आ जाएगा √CKW/Ka2। नेगेटिव लॉग लेके pH और फिर POH आ जाएगा 7 + ½ log C + ½ pKa2, करेक्ट? ओके, Yes, sir. Yes, sir. अगर Na3PO4 लिया होता तो क्या आता? तो यहाँ PC आता, करेक्ट? तो बेसिकली मैं इसको लिखता हूं PK लास्ट, क्योंकि आखिरी आयन ही एक पॉलीप्रोटिक एसिड का नॉन एम्फोटेरिक आयन होगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उस पॉलीप्रोटिक एसिड का जो लास्ट पीके है, उसी से हमें नॉन एम्फोटेरिक मल्टीवेलेंट एनायन मिलेगा। नोट कर लिया? एक मिनट सर। सर ये सबका डेरिवेशन हम सिर्फ एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए रखें ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, सर इधर हमने 1 - अल्फा को क्यों निगलेक्ट किया, आप एक बार बता सकते हैं? यार ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो निगलेक्ट करते हैं, तो आईने की आई थिंक पहली क्लास से कर रहे हैं। और सिमिलरली नाउ बिल्कुल सेम तरीके से अगर सॉल्ट में सॉल्ट हैविंग amphoteric cation and anion from strong acid, तो क्या हो जाता है एक्सप्रेशन? POH is equal to pKb1 plus pKb2/2। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. और
उसमें क्या होगा पीएच 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के बी लास्ट। ठीक है। यस सर। Yes, sir. सर वो जो पीओ एच वाला है उसमें अगर 3 स्टेप होंगे तो वो पी के बी 3/3 कर देंगे। स्टेप कैसे होंगे? हाउ विल देयर बी 3 स्टेप्स? नो सर, सॉरी सॉरी सर। चलो बुकलेट निकालो। Excuse me, sir. नम- So, show the previous page. Thank you, sir. चलो स्टार्ट करो ये जरा प्रॉब्लम्स करना। चलो अटेम्प्ट दीज प्रॉब्लम्स।
हो गया कंप्लीट? यस। फिर आप 40 सेकेंड वाला कर सकते हैं FPS का। तो थोड़ा और टाइम दो ना प्लीज। We'll discuss after 5 minutes. करो attempt.
हाँ चलो बोलो कौन सा डिस्कस करना है। सर 46 46 42, 46 और 42 47. 47 का बी पार्ट और 45 और 47. 42 43 47 सर. सर FBS सारा ही कर 42 PuO2 NO3 होल ट्वाइस। तो इसमें कैटायन ये है, एनायन ये है। एनायन इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रिकॉग्नाइज किया। हाँ सर। और कैटायन कैसा है? पीक बेस। पॉलीप्रोटिक बेस से है, नॉन एम्फोटेरिक मल्टीवेलेंट। करेक्ट। इसका तो ये क्या पीएच का एक्सप्रेशन लिखा है आखिरी वाला, 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ PKB2, pH 4 दिया है, मोलारिटी 0.01 दी है, तो उसका लॉग -2 हो जाएगा। तो PKB2 कितना आ गया? 8। करेक्ट। सर PuO2 कहाँ से आ रहा है आपने बोला? यार PuO2 2+ है, यस सर। ये इस तरह के बेस से आ रहा है। ओके। तो तुमसे क्या पूछा है? Kb ऑफ PuO2OH प्लस, that is nothing but Kb2। और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है PuO2 2+ का, क्या होता है? Kw/Kb2। ठीक है। क्लियर? सो ये हाइड्रोलिसिस वाले का फिर से बताओ। भाई इसमें देखो, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? नॉन एम्फोटेरिक मल्टीवेलेंट एनायन। यही तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा ना इसका। यस सर, ओके आई गॉट इट। लेकिन प्रीवियस पेज दिखाओ ना। फोर्टी 44 में कैसे डाउट है? NaHCO3 दिया है, ये तो डिस्कस किया। क्या होगी H+ की मोलैरिटी? √Ka1 Ka2, दोनों वैल्यूज दी हैं, रख दो। H+ की मोलैरिटी मिल जाएगी, नेगेटिव लॉग ले लो, pH मिल जाएगा। ठीक है। 42 sorry 43 ये सॉल्ट है, ये तो मोनोप्रोटिक एसिड बेस वाला सॉल्ट है।
और इस एसिड का K दिया है, करेक्ट। क्या होगा पीएच का फॉर्मूला? 7 प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ पीके। के की वैल्यू दी है, पीके निकल आएगा। हाँ सर समझ। और क्या है? 46 46 OH माइनस कंसंट्रेशन निकालनी है। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब इक्वल मोल्स रिएक्ट हो, एसिटिक एसिड और NaOH। सर आप एक सेकंड पीछे सेट कर सकते हो? ओके सर। ठीक है, इक्वल मोल्स जब रिएक्ट हो, करेक्ट, तो दोनों की मोलैरिटी 1 है। अग्रीड? यस सर। दोनों की मोलैरिटी 1 है, सॉरी 0.1 है। पॉइंट इक्वल मोल्स के लिए दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स लेने पड़ेंगे, करेक्ट। यस सर। इक्वल वॉल्यूम्स लेंगे, ये रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? सोडियम एसीटेट और वाटर। और फाइनली सोडियम एसीटेट के मोल्स कितने बन गए? 0.1 भी। तो मोलैरिटी हो गई बाय 2V टोटल वॉल्यूम, करेक्ट। सोडियम एसिड की मोलैरिटी क्या हो गई? 0.1/2। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, पीएच कितना होगा? सेवन प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ पीके की वैल्यू दी है, ठीक है। हाँ हो जाएगा सर। थैंक यू सर। सर एक मिनट प्रीवियस स्टेप बता सकते? थैंक यू सर। सर 40th So for an amphoteric anion, the reaction from which we calculate KH is the one which will form the acid again, right? There are 2 KH. Okay. Okay, thank you, sir. सर क्या आप क्वेश्चन 40 लिखा? So can you show 46th question? तो 46 और 47 सॉल्व कर सकते हैं।
हो गया है नोट? Yes, sir. Zn2 plus का Ka given है तुझे 10 raised to minus 9. तो भाई ZnOH प्लस इसका K क्या होगा? KW बाय KB2, तो इसका KB2 कितना हो जाएगा? 10 raised to minus 5. और इसका pH क्या होगा ZnCl2 का? नॉन एम्फोटेरिक कैटायन का सॉल्ट है ये। ठीक है, ओके। कर लिया नोट? चले आगे। अल्फा निकालना है K2CrO4 का। Salt having non-amphoteric multivalent anion and cation from strong base. अल्फा का क्या फॉर्मूला दिया था? KW by CK2। मोलारिटी दी है 0.005। K2 कितना दिया है? 3.1 into 10 raised to minus 7। निकाल लो, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, हो गए FBS के सारे कंप्लीट? Yes. अरे करा लिए तुम लोगों ने। 40, 42, 46, 7, 43 भी हो गया। लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। होमवर्क में FBO 61 to 82 कंप्लीट करो। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी। Sir, बाय सर, थैंक यू। बोल। sir, review में FBO का डाउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।